brothers and sisters. First of all, thank you very much for giving me your valuable time and listening my short speech on importance of patience. Before my speech, I would like to express my gratitude to Ummid Welfare Society for organizing this speech competition and provide an opportunity to present my express view on importance of patience. What is patience? Sabr. It's an Arabic word which means patience, perseverance and steadfasting. Scholars have defined as a good human trait and attitude. A patient person bravely faces the difficulties of life and refrain from doing evil action in reaction in life calamities. Importance of patience. Patience is regarded as the half of one's leader's life. Patience is an essential and most important division to surrender to God and is grown with resignation. The highest spiritually rank in the sight of God to whatever God is destined. One of the most important actions of the heart and mentioned in Quran. Patience is essential characteristic who is believer and who are most advanced in belief. Spiritually nearness to God and who fight to others truth. So what in this young generation need to learn is patience. That's something that really matters like love, joy, job fulfillment, love of life, self-confidence, skills to set any of these things. All of these things take time, take patience. I would like to conclude my speech by saying this quote: a moment of patience in a moment of anger. A moment of patience in a moment of anger you save 100 moments of regret. Patience is companion of wisdom. Thank you very much for listening my short speech. अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं आप सभी की तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप आपका कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की टीम की जिन्होंने महिदपुर में हम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कोचिंग शुरू की और ये इंग्लिश कोचिंग हमारे लिए बेस्ट कोचिंग थी क्योंकि क्लासेस में हमें इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर हमारे दिलों में जो डर था उस डर को खत्म किया, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और हमें मोटिवेट किया और इन सभी में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। प्रवीण सर, थॉमस सर और वसीम सर ने हमारी स्टडी में हमारी पूरी हेल्प की और हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की टीम की जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। हो सकता है कि आज हम कोई गलती करें स्पीच बोलने में क्योंकि ये मेरी फर्स्ट स्पीच है। आप सभी से उम्मीद है कि आप हमारी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी गलतियों को सुधारने की और इस समाज का खोया हुआ गौरव वापस लौटाने की। Let's start. Good evening to all of you, respected teacher, honorable guests, dear brothers and sisters. As we all know, women are about half the population in the world. Even with such as an acute understanding and knowledge, the sad reality prevails. In society and the world in which we live, women are often not given any part or role to play the decision maker roles in many professions. How do we expect the world to grow when the decision makers in our patriarchal society are only men, and they are making decisions on behalf of women without even comprehending or even beginning to understand the struggles in a woman's life? Empowerment is a very wide term, and to each his own. The general idea of empowerment, however, is to include others who are often neglected in the decision-making process. In this case, inclusion and acceptance of women in such roles is
We cannot all succeed if half of us are held back envy. Earlier, the role of women in the society as decided by men was to run a household, getting married at a younger age, and the problems like dowry and tolerating many forms of abuse in married life was given. Now, in India, women are stepping outside the home to work and earn a living to support themselves and their families, unlike in ancient times. So, even the rules and way of functioning in modern times must shift. Of course, this shift will not be overnight. Any change is slow and gradual. The first step must be to acknowledge their contribution to the economic sphere and create more opportunities for them, be it in any sector like corporate, IT, culinary, law, banking, creative and performing arts. When opportunities are created for women in terms of education, in terms of profession, in the field of interest, without any restrictions or limitations, it is empowering. Empowerment can be done in various ways. Social empowerment is when women are represented as evolved and worthy beings in the media instead of in a regressive way. Economical empowerment comes about when they are treated as contributors in the same way as men and paid accordingly without any discrimination. The most crucial from being educational empowerment because it is truly a leveler and it brings all on equal footing. When one is educated, it should not matter whether they are men or women as long as they get the job done. And that is why education should not be denied to girls, which is still an unfortunate truth in many parts of India. It is these educated girls who become women with self-confidence, intellect and concern, who excel in every field and can also become heads of the department and the decision maker. Education is a great tool to empower the women as it will bridge all other gaps in our society and we as a nation will prosper. Thank you very much for listening to me. Honorable guests and all of you. Today I am giving a short speech on the topic of social media. The greatest revolution in the history of mankind is social media, and it's completely introduced a new epoch along with this new generation. Social media is a technology which enables us to share any kind of data, be it image, videos, blog, and much more information with others. Social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn are making people more connected and informative. Where you can find social media in every nook and corner of the world, as it has gained more popularity due to its immeasurable benefits and pleasures. However, these web-based platforms have their own pros and cons. So let's have a look at some of the positive aspects of social media. The most important benefit of social media, it is ability to share any kind of information around the world. This has made it possible for students to do distance learning at the comfort of their home. Not only this, but social media is also the primary means for creating awareness of various social issues among people. It is also brought to distance between people living far from each other. People can now communicate with each other from any corner of the world. Well, just like a coin has two sides. The foremost issue is the privacy issue that often makes your personal information vulnerable to cyber criminals. Also, students nowadays are addicted to social media and spend most of their time on mobile and laptop. This has a serious impact on their studies and grades.
Privacy violation has made many students and youth to commit suicide when something about them is posted on the internet. Winding up, social media is a great way for connecting with people around the world and grow healthy connections. However, people need to know how to use it wisely so that it does not cause any harm of society in a nutshell. One should share less of their private information on social media to enjoy hassle-free experience. Thanks for listening to me. शुक्रिया मुझे एक और स्पीच बोलने का मौका देने के लिए। और आज का टॉपिक है स्पीच का हु आर रियल एजुकेटेड पर्सन। असल में शिक्षित व्यक्ति कौन है? Once a British man asked Swami Vivekananda, "Why don't you wear a good cloth and look like a gentleman with a smile on face?" Swami Vivekananda replied, "In your culture, a tailor makes a gentleman, but in our culture, character makes a gentleman." I stand here today to put across my views about the aims and objectives of education. Millions of parents get their children up early in the morning and send them to school hoping to see them become doctors, engineers, IAS officers and so on. Their expectations put a lot of pressure on their children, and during the course of their education, students tend to forget the real purpose of education. They however manage to fulfill their dreams of their parents by becoming doctors and engineers. But they have no time for their friends and relatives and have no compassion for their neighbor and fellow human being, as their sole purpose of life is to compete with rich people and enjoy the luxurious life. Dear brothers and sisters, this is not the purpose of education. Education system today has lost its objective. It has become commercial. It has gone to the hands of many pupils as they can impress the general pupil by providing infrastructure and ambience. Such people should know that buildings do not make institutions. It's the teachers who make institutions. Let me take this opportunity to remind you that Mother Teresa did not even have the blackboard. The only tool she had was love for children. Dear brothers and sisters, educator is not the person who graduates from a reputed university and hands over his parents to old age home when they need their children to be a third beck and call. Educator is not the person who lives lavish life and turns a blind eye to his neighbor with no concern if they are going to sleep empty stomach. Educator is not the person whose name is followed by the list of degrees, but he uses abusive languages and threatens people through his influence. Dear brothers and sisters, educator is the person who may even give up a job if it works and turns to his parents to serve them when they are bedridden and need proper care. Educator is the person who loves his wife, who loves his children and simultaneously concerned about his neighbor if they need any support. Educator is the person who holds his love and exhibits patience even at the time of hardship. Educator is the person who develops a habit of forgiving people despite knowing that they are wrong and guilty. Educator is the person who never lies to pupils, who never deceives his customers at any circumstances. Educator is the person who never indulges in communal differences. In fact, they respect the followers of all religion. Is there any school where all these manners are inculcated? Is there any college where all these values are nurtured? Is there any university where the lessons of honesty and integrity are imparted? School, colleges, universities are known today for teaching science, maths, commerce, economic, history, computer. Ladies and gentlemen, this world doesn't get a school that produce doctors, engineers, and accountants, but fail to inculcate manners in them, fail to instill confidence in them, fail to nurture values in them, fail to make them outspoken individuals. I don't say it is the sole responsibility of the parents to focus on their children instead of dumping the responsibility of the teachers at school. It is the prime responsibility of the parents to raise their children in such an environment as they grow up all the learnings from their lifestyle. That is why somebody rightly said that a child educated only at school is then uneducated
uneducated child. I repeat, a child educated only at school is an uneducated child. Dear audience, I wrap up my speech with a wonderful quote of Munawwar Zamansar. The true purpose of education is not to stuff the mind with the so-called syllabus. Beyond the syllabus lies in the true lessons of education, which begins with confidence building and ends with character building. Thank you very much for listening to me with such an attention, and have a wonderful day. लगभग 50,000 लोगों तक खाना जरूरतमंद तक पहुंचाया है। तो ये भी काम उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी करती है। अब इसी कड़ी में अपने आप को ज्यादा बोर न करते हुए मैं समाज सदर साहब को आमंत्रण देना चाहूंगा कि वो आए और कम समय में अपनी बात रखकर बच्चों को हौसला अफजाई करें। जनाब सदर साहब, मौजूद नवाब साहब, जनाब काजी सैयद मसूद अली साहब, जनाब दिनेश चंद्र बोस साहब, जनाब आनंदलाल जी शेखरानी साहब और जनाब कयूम भाई, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इज्जत अफजाई की। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया के अंदर दो तरह के इंसान आए हैं। एक तो वो लोग हैं जो अपना काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपना मकान बनाते हैं, अपने बच्चे पढ़ाते हैं, अपना सब कुछ करके इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी के मुकाबले में एक वो लोग हैं जो अपना तो करते हैं लेकिन साथ साथ वो दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी का ये जो प्रोग्राम है और इनके जो मेंबरान हैं, मैं मुबारकबाद दूंगा उन्हें कि कम से कम वो पीड़ित मानव के लिए, गरीब लोगों के लिए, बेबस, लाचार और बेसहारा लोगों के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। वरना वो पहले नंबर के जो लोग, वो तो इस दुनिया के अंदर आए और नहीं आए, बराबर हो गया होगा। लेकिन ये जो दूसरे नंबर के लोग हैं, ये अपना सब कुछ करते हुए ये दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ये काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे और ये इस काम में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें और पीड़ित मानव समाज की सेवा करते करते इस दुनिया से जाएं। यही एक बड़ी कामयाबी होगी। सबके लिए काम करें, हम सब अमन और अमान के साथ इस शहर के अंदर रहें। और जहां तक एजुकेशन की बात है, तो वो जो हमारा जमाना था सन 60 के आसपास का जमाना, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, उस वक्त अगर कोई बच्चा 60% नंबर ले आता था तो वो बड़ा खुशी खुशी जो है अपना रिजल्ट दिखाता फिरता था लोगों को। लेकिन आज का जो ये दौर है, ये कंपटीशन का दौर है, ये 90 और 95% मार्क जो है हासिल करने का दौर है। तो मैं बच्चों को एक ही बात कहूंगा कि वो इस मैदान के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करें, मेहनत करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। और खास तौर से मैं परवीन सर को भी मुबारकबाद देता हूं कि, और ये एक और जो सर साथ में बैठे हैं, वसीम सर वगैरह, कि इन लोगों की कोशिशों का नतीजा है। कहीं ना कहीं इन्हीं की मेहनत है कि आप जो है इतने फॉर्म में जो है इतने बड़े मंच को पर इतनी पब्लिक के सामने अपना जो परफॉर्मेंस आपने पेश किया है। मोहतरम, आज के इस उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के ऑर्गेनाइज करता तमाम कमेटी के मेंबरों को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि शहर में उन्होंने एक नई मिसाल को जलाया, मसाल को जलाया और नई मिसाल पैदा की है। और आज का ये प्रोग्राम
इस महत्वपूर्ण के लिए भी एक मिसाल बना और ये प्रोग्राम एक पहला स्पेशली प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम पर मंचासी जनाब शहर काजी साहब, मसूद अली जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब शांतिलाल जी छजलानी साहब, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जनाब दिनेश चंद जी बोध साहब और मेरे नागौरी जमात के सदर जनाब मोहिउद्दीन नवाब साहब। आज इस शहर के अंदर ये एजुकेशन के मामले में एक पहला प्रोग्राम उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जो किया गया और यहाँ पर बच्चों का जो एजुकेशन का परफॉर्मेंस देखने में आया, ये काबिल तारीफ है। आज के इस तरक्की के दौर में और कंपटीशन के दौर में हमें सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोगों को एजुकेशन की जरूरत है और उसकी एक शुरुआत उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी ने शहर से जो एक अलग जगाया है। मैं उनकी भी यही कहूंगा कि वो भी एक तारीफ के काबिल है कि हमारे बुजुर्ग और हमारी उम्र के लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इन नौजवानों ने वो काम कर दिखाया जो एक काम पिछले समय वक्त पर जो ब्लड डोनेट का काम किया था उसमें हमारे शहर का नाम रोशन किया। आज इस मंच से जो देखने में आया वो भी एक मिसाल और हमारे शहर का एक नाम रोशन। यहाँ पर ये बताया कि जो सामने बैठे 3 टीचर्स अपनी लगन और मेहनत में जो वक्त दे रहे हैं उन्हें दिल में मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सबसे बढ़िया जो आज हम एजुकेशन के मामले में माइनॉरिटी के लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन आज मैंने बच्चों का, खास तौर से बच्चियों का जो परफॉर्मेंस देखा, बड़ा दिल खुश हुआ, क्योंकि हमेशा माइनॉरिटी के लोग पिछड़े हुए और बदनामी में जुड़े रहे। आज इन बच्चों को अगर यही एजुकेशन मिला और इन्होंने हाई एजुकेशन हासिल करके अपनी जिंदगी का एक नया रास्ता बनाएंगे, इस शहर के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और माइनॉरिटी के लोग इस मामले में हिस्सा लेंगे। ये हमारी बड़ी आप लोगों की जो कुर्बानी ये मुस्लिम समाज याद रखेगा। तो मैं सबसे ज्यादा उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी और तीनों टीचर्स को बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि आगे आप इसी तरह से अपने काम करते रहें। अल्लाह से उम्मीद है कि उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी को अच्छी कामयाबी दे और उनके नेक कार्यों में, नेक कामों में बरकत दे। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने मुझे बुलाया मेहमान के रूप में, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। Respected Honorable Chief Guest Kazi Maqsood Ali Sahab, respected Sadar Nagori Samaj नवाब साहब, रिस्पेक्टेड कांग्रेस के लीडर मेरे बड़े भाई शांतिलाल जी छजलानी साहब और मेरे नेता एक्स प्रेसिडेंट नगर पालिका कयूम नागौरी साहब, बॉयज एंड गर्ल्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैंने सबसे पहले तो मैं मेरे सामने प्रवीण सर, अहमद सर और हफीज सर बैठे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपके द्वारा कोचिंग, आपकी कोचिंग के द्वारा जो लड़कों का मैंने और जो लड़कियों का परफॉर्मेंस देखा
उनके हाथ की एक्टिविटीज से लगा कि वो रट के नहीं आई है, वो जो बोल रही है वो समझ रही है और समझ के वो बोल रही है। इतनी अच्छी सरकारी स्कूल से पढ़ के आने के बाद इस तरीके से ये नन्ही लड़के 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ती हैं, 8वीं से 12वीं क्लास तक की लड़कियां हैं, और लड़के जो मैंने देखा है उनकी एक्टिविटीज को देखने के बाद लगा कि उनमें काफी जोश भी है और ललक भी है। तो मैं इन लड़कों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अपन को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये समाज और ये सरकार, इन लोगों ने आपको दो भागों में बांट रखा है। हिंदुस्तान के अंदर केवल 20% लोग ही राज करते हैं, 80% लोग और अपन लोग जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। हमारी आजादी दो भागों में बंट गई है। आप लोग जहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जिन लोगों से आपका कंपटीशन होने वाला है, उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। वो बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न है, इंटरनेशनल कोर्सेस है, और अपन जहां शिक्षा ले रहे हैं वहां पे एमपी बोर्ड है, सरकारी स्कूल है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपको लैंग्वेज की समस्या आएगी, आपको राजनीति की समस्या आएगी, आपको पैसे की समस्या आएगी। और उन लड़कों से कंपटीशन करना है हमारे ही देश में जो बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सरकार की सुविधा ले रहे हैं। तो बच्चों, आपने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, स्वामी विवेकानंद का नाम लिया। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने पेपर बेचते थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा ग्रहण करी और राष्ट्रपति बने। तो ऐसी समस्या आपको भी आएगी। आपके माता पिता के पास अच्छी कोचिंग के पैसे नहीं होंगे, आपके माता पिता के पास आपको दिल्ली बॉम्बे बड़ी बड़ी कोचिंग में भेजने के पैसे नहीं होंगे। सरकार की तरफ से आपको लोन की बात होगी, लेकिन लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी हिम्मत मत हारना। आपने अगर अपना सपना बड़ा देखा है तो आप जरूर सक्सेस होंगे। आपके जोश को मैंने देखा है। मैं महत्वपूर्ण में राजनीति करता हूं। भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा कि अगर मैं किसी काम में आपके आ जाऊं तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन आप अपने सपने को छोटा मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि ना लोग यहाँ बच्चे सपना ही छोटा देख रहे हैं। इस सरकार ने, यहाँ की व्यवस्थाओं ने उनके सपने को चूर चूर कर दिया। यहाँ के लड़के ज्यादा से ज्यादा सेना में जाना चाहते हैं जवान के रूप में, ज्यादा से ज्यादा तहसीलदार बनना चाहते हैं, पटवारी बनना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कहीं बैंक में क्लर्क की नौकरी की बात करते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र का लड़का बड़े सपने ही नहीं देख सकता। वो कलेक्टर की बात नहीं करता, वो आईएएस की बात नहीं करता, वो पीएससी की बात नहीं करता, वो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स की बात नहीं करता, वो सीडीएस कमांड डिफेंस सर्विसेज की या मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाऊं ये बात नहीं करता है। वो खाली सेना में जवान बनने की बात करता है। वो बड़े बड़े पीएमटी है, पीटी पास करने के बाद या आईआईटी में जाने की बात नहीं करता। वो केवल कहीं सरकारी कॉलेज में इंजीनियर बन जाए और एक नौकरी कर ले, इसकी बात करता है। तो आपको बड़े सपने देखना है बच्चों। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप बड़े सपने देखें। संघर्ष आपको बहुत करना पड़ेगा। माता पिता भी आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, सरकार आपका सपोर्ट नहीं करेगी, समाज आपका सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको सपने बड़े देखना है और बहुत आगे बढ़ना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपको और बधाई। आप बहुत आगे बढ़े। अब मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बारे में भी बात करूंगा कि मैंने पिछले साल जब खून डोनेट वाली बात हो रही थी और वहां पर पलंग पे हमने 100-150 लोगों को खून देते हुए भी देखा था। वहां पर हमारे यहाँ के जज मजिस्ट्रेट साहब खान साहब भी आए थे
उन्होंने भी वहां पे भाषण दिया था, कयूम साहब ने भी दिया था और मैंने भी दिया था। मेरे अभी बैठे बैठे एक विचार आया, उम्मीद सोशल वेलफेयर सोसाइटी से मैं जरूर बोलूंगा कि आप जहां भी जाएं और ये जो ब्लड इकट्ठा आप करते हैं तो एक बात जरूर बोले, जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा संदेश जाएगा कि ये जो कमेटी है ये मुस्लिम की है और ये जो ब्लड इकट्ठा किया है इसमें मुस्लिम का भी खून है, जो आप हिंदुओं को भी चढ़ जाएगा। ये बात जरूर जाए कि ये जो ब्लड इकट्ठा हुआ है इसको उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी है उसने इकट्ठा किया और इसके अधिकतर मेंबर्स मुस्लिम हैं और इसमें मुस्लिमों का भी खून है, जो हिंदुओं को भी चढ़ रहा है और मुस्लिमों को भी चढ़ रहा है। एक बहुत अच्छा संदेश आएगा, बहुत प्यार मोहब्बत की बात बनेगी। और जब खून मुस्लिम का खून अगर हिंदू के उसमें जाएगा तो कहीं ना कहीं तो खून बोलेगा, फिर तो एकता की बात जरूर होगी। तो मैं यही चाहूंगा, मैं समिति के सब लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा। मैंने एजाज का स्पीच भी सुना, उसमें काफी जोश था। उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हम 500 रुपए, 5,000, 7,000 और 10,000 रुपए की जिसकी महीने की कमाई है, जो बोल रहा था पंचायत की दुकान पे काम करने वाले, मैकेनिक की दुकान पे काम करने वाले से हम 200, 300 रुपया लेते हैं और इस सोसाइटी को चलाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। उसने बोला हम करोड़पति के पास नहीं गए, उद्योगपति के पास नहीं गए। तो इसमें जो भी चीज देखी जाती है शुद्ध रूप से जो इस कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी के जो कार्य हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे टीचर मिल जाए, एजाज और उसकी टीम जैसे ऐसी कमेटियां बन जाए और इस तरीके से अगर काम हो तो वास्तव में ये देश बहुत आगे बढ़ जाए और इस देश में भाईचारा भी पैदा हो। जहां तक महत्व की बात है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करता, लेकिन इस महत्वपूर्ण को सुधारने के लिए, इस महत्वपूर्ण के अंदर प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का नाम अच्छे से लेने के लिए, इस विवाद से दूर होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है और उन दोनों पे काम करना पड़ेगा। एक है शिक्षा और दूसरा है रोजगार। अगर शिक्षा भी मिल जाए और रोजगार भी मिल जाए तो हिंदू मुस्लिम ही खत्म हो जाए। क्यों? कि जो लोग बेरोजगार हैं, जब उनका दिमाग खाली रहता है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट भी जुल्म करती है, सरकारी कर्मचारी, पुलिस सब जुल्म करते हैं। जब वो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, मैंने बहुत सारे मुस्लिम लड़कों को देखा है और बहुत सारे हिंदुओं को भी देखा है। वो अपना पेट भरने के लिए रेत का धंधा करते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए और भी मेहनत का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत को भी कोई छीन लेता है तो फिर गड़बड़ करते हैं। अगर उन्हीं लड़कों को रोजगार दे दिया जाए तो गलत दिशा में नहीं जाएंगे और उसके साथ साथ उनको अगर शिक्षा भी दे दी जाए तो फिर अच्छा काम करेंगे। तो रोजगार और शिक्षा ये दोनों देना जरूरी है। ये कोई हिंदुस्तान लेवल की बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर अपने लीडर बन जाए, नगर पालिका में अगर कोई समझदार आदमी बैठ जाए, चाहे हिंदू बैठे चाहे मुस्लिम बैठे, उसकी विचारधारा ये हो कि रोजगार और शिक्षा मेरे को देना है, तो नो डाउट शांति की किरण जरूर पैदा होगा। विधायक भी अगर ऐसा बने, उसकी सोच अगर ऐसी हो और सरकारें भी अगर ऐसी बने और उनकी सोच भी ऐसी हो, तो पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में
और हमारे महत्वपूर्ण में अमन और चैन आ सकता है। और अमन और चैन लाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। और हमारी जो सोसाइटी है, ये उम्मीद सोसाइटी, ये उस दिशा में काम कर रही है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस सोसाइटी को 11,000 रुपए मैं इस कमेटी को देना चाहता हूँ। आप इसको अच्छे काम में लगाएं। मुझे बुलाया, मैं बच्चों आपको बता दूं कि मैंने भी एमटेक किया है मिनरल एक्सप्लोरेशन में बॉम्बे से। उसके बाद नौकरी की तलाश में भटका, नौकरी नहीं मिली, व्यापार किया और उसके बाद मैं राजनीति में आया हूं। कोई भी लड़का आगे की पढ़ाई के लिए या अगर जरूरत लगे तो मेरे से बातचीत कर सकता है। मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ। कहीं भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मुझे बुलाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों और दोस्तों, जैसे कि यहाँ बैठे हमारे फादर के दोस्त भी हैं, राजनीतिक में मेरे अंकल भी लगते हैं, चिजा भी लगते हैं, अलहमदुलिल्लाह की सयूम भाई, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त और मेरे को कि एक बेटे जैसा इन्होंने रखा है। आज तक मेरे से कोई हर जगह मेरे को जरूरत नहीं, इन्होंने मेरी मदद की है। इनके सयूम भाई का भी को भी यानी कि, और हमारे जुनेद जी बॉस जो यहाँ है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आए, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में कोई आना पसंद नहीं करता है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो होता है, मेन चीज तो आज उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी ने जो ये कदम उठाया है, ये आज इंदिरा जी को बुलाया है, दिनेश जी बोस को बुलाया, ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उसमें हमें एक दूसरे से मिलना जुलना होएगा तो ही एक दूसरे के बीच में रहने की शांति बनी रहेगी। और उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है, जैसे ब्लड डोनेशन इन्होंने किया था, उसमें मैं भी गया था, काफी उत्साह था लोगों में, नौजवान बच्चों में। आज इस कमेटी के जितने भी बच्चे हैं, मैं देखता हूँ हर काम में मेरे को भी बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा, जहाँ भी जरूरत लगती है इनको मेरी, तो मैं इनकी मदद करता हूँ। ये हमारे हम सब मिलजुल के भी काम करते हैं। यानी मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ये ना सोचे कि ये गलत कर रहे हैं या कोई अच्छा आज ये एजुकेशन का काम कर रहा है। आज ये बच्चों ने इतनी स्पीच दी है, आज हमारा दिल खुश हुआ है कि हमारे समाज में कोई आगे तो बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसको यानी आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं सोचे कि ये गलत है, लड़की है तो ये स्पीच दे रही है। ये आजकल का टाइम वो नहीं है कि पर्दे में रह के यानी कि लड़की है अपने कुछ करेगी, क्योंकि आजकल नौकरी पेशी मिले या न मिले, एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। या एजुकेशन के लिए वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी बच्ची पे भरोसा रखे कि वो बच्ची हमारी है, कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। इसी के साथ में यानी कि उसका हौसला अफजाई करे वालिद और वालदा कि जा बेटी तू पढ़ लिख। उसको ये नहीं कि अब तू यानी बड़ी हो गई तेरी शादी में यानी कि करेगी, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाए, शादी आज की न कल होगी, या वो अपने पैरों पे कहीं पे पढ़ेगी लिखेगी। कहीं मुसीबत के टाइम पे घर में भी अपने परेशानी आई तो वो लड़की अपना घर बाहर सब चला के एक बार अपना बेटा जो है वो अपना साथ नहीं देगा कभी भी। आज बड़ा होकर उसकी शादी हो जाएगी, अपन देखते हुए ही आ रहा है या कि वो अलग हो जाएगा, माँ बाप कैसे हैं कोई मतलब नहीं है, वो अपना कमारिया खाया। लेकिन बेटी ऐसी नहीं रहेगी, बेटी को माँ बाप की ही परवाह रहेगी, बेटी ही उनका देखभाल करेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को भी पढ़ाए और एजुकेशन में ज्यादातर ध्यान दें। पहले था कि बच्चा अपना 10, 11 साल 12 साल का होता, हमारी पोजीशन भी ऐसी नहीं थी, हमारे पास इतनी कमाइए भी थी। सही बात है ये कि हम बच्चों को यानी 10, 11, 12 साल का होता ना, कहीं पे भी कहते हैं कि पंचर जोड़ने में इसमें ठेला गाड़ी जो वालिद कर रहा है वो बेटा भी यानी क्या बेटा मेरे थक गया हूँ। लेकिन आजकल वो टाइम नहीं रहा है, आजकल टाइम है एजुकेशन का। आज हम खाने में भी जाते हैं
तहसील में भी जाते हैं, कोई बाबू हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई यानी बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो वो धुतकार के हमें भगा देता है। आज हम पढ़े लिखे हैं तो हम अभी चपरासी के पास क्यों नहीं सुन रहे, फिर एसपी में कलेक्टर के पास क्यों, हम पढ़े लिखे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम किसी के पास जाके बात हम बोलेंगे कि भैया तू चल यार, भैया तू चल यार, उसकी। लेकिन पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बच्चों को और हमारी जितनी भी खातिन बहनों ने यानी कि आज में स्पीच दी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। वो सुनकर मैं उसके बहुत यानी कि वो मेरे को आज लायक तो है कि भैंसपुर के अंदर हमारे सर ने जो मेहनत करी है ये बहुत बड़ी तारीफ काबिल है कि आज स्कूल में भी पढ़ाना, ट्यूशन भी पढ़ाना, ये सब कुछ यानी कि बहुत अच्छी बात है। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे नौजवान भाई जो कि ये काम कर रहे हैं, इनका भी यानी कि काफी यानी कि बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि कुछ चीजें और भी इनको जोड़ना चाहिए, कुछ लोगों को जोड़े, साथ में ले और इसको बहुत बड़े स्तर पे करना चाहिए। आज इन्होंने बताया उसमें कि हमने एक शादी करी, इसी में मैं एक सोचना चाहता हूँ जो भी ऐसे है इनके थ्रू भी सम्मेलन का एक वो चलाया जाए कि सम्मेलन है कि भैंसपुर में होते तो है ही, लेकिन अपनी तरफ से ऐसे कोई हो 5 जोड़े हो उनको यानी कि शादियों में यानी कि वो करना चाहिए, इनको ऐसे काम करे। इनका तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे यहाँ बुलाया उसके लिए हौसला अफजाई की, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी को, उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 11,000 रुपए डोनेशन किया। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। सभी दिल थाम कर बैठे हैं क्योंकि गेस कीजिए कौन हो सकता है। आप इस कंपटीशन में थे भी नहीं। जूनियर वर्ग से तीसरा स्थान जिन्होंने हासिल किया है उनका नाम है, सदर साहब बता दो। तीसरा स्थान जिनको मिला है वो है अक्सा। अक्सा स्टेज पर आए और अपने इनाम अतिथिगण इनामा से नवाजें। बहुत मेहनत रही इस प्रोग्राम में, हमारे टीचर्स की निरंतर प्रयास रहा उनका। सीनियर वर्ग में दूसरा लाटाना उसका थोड़ा मोबाइल आइए साहब, अफरोज नावोरी। फोटो ले रहा ना। इकरा परवीन। भैया मोबाइल था। सुफियान मोहम्मद कुरैशी। रिजवान खान। ये बताइए रिजवान खान।
नागोरी, नागोरी